Hello. This phosphoric acid has in their essence some contradiction to acid, and it is more towards the phosphorus part that is developing in this phosphoric acid. So many things common to acid group that is contradictory in phosphoric acid. So while studying, we will discuss it. The first thing that here I would like to discuss with you, what I say, the minimum syndrome of maximum value. जिनके पास किताब है वो किताब पे किताब में देखो और नोटबुक पे लिखना शुरू करो. Just write down the words. First is called masturbator or masturbation. I will give you why I am saying this first. Just write down 3 to 4 symptoms. What is first is masturbation. Next is apathy. After masturbation, it is apathy. Next is overtaxed. And last but not least is debilitating from psyche to soma. This is what? This is the entry point of your phosphoric acid. Let's have a look on these symptoms that I have just told you. This will describe you the whole personality of phosphoric acid. This will describe you the maximum clinical application of phosphoric acid. It is said to be that अभी अभी जो बच्चे का केस हमने आपको बताया था, और even after that, it is the action of getting in wrong hand. इसको याद रखना, getting in wrong hand and developing a wrong hand. So this is what is the intricate in every class for every medicine. I will give you this colored frame, and that this colored frame will give you the what I said minimum syndrome of maximum values. उसका entry point जो है वो यहाँ से आपको मिलेगा. So the whole phenomena, it is being from the very first earliest clinical observation, either starting from Hahnemann's proving and there, because this is the very important remedy which is present in both Materia Medica Pura as well as in chronic disease. It has both parts. It has a very frequent interaction for countering acute phases, as well as it is equally important for clearing the chronic miasmatic layer also. So, masturbation, apathy, overtax, and debilitating psyche to soma. This is the core feature. This is the core entry gate for phosphoric acid. You can say that the whole phenomena of deterioration of health of phosphoric acid is having an important exciting factor, a causative factor, or a factor that develops the different pathology is the practice of this masturbation. Nowadays, this is very important because हमने जो अभी केस आपको बताया था बच्चे में, उस केस के पीछे अगर आप रीजन देखोगे, उस केस के पीछे अगर आप फाइंड आउट करके देखोगे, then you will find that this child is having an influence of someone for this type of habit, and gradually this habit goes into such a level of uncontrolled thing that even in spite of being disgusted by this act, being disturbed by this act, being deteriorated by this act, he is not able to forgive this sin. He is not able to leave this habit. इस चीज के लिए एक डिफरेंस आपको बाद में बताएंगे, how it is different from its very close counter of Staphylococcus, and somehow one part that is from Buforana in different other aspect also.
I will give you this phenomena. In the act of this acid phos, many authors, even if you study the different prefaces of Honeyman, you will find that this whole phenomena of acid phos is centered into this act. This acid phos with this part is having been powered by phosphorus part rather than acid part. And that's why, in spite of getting this habit, the phosphorus part of this acid phos is so prominent that this remedy has a very profound sexual energy. इवन देखो एलेंस की नोट में आप देखोगे, एलेंस की नोट के सेकंड पेज पे राइट हैंड पे जहाँ पे ओनानिज्म का लिखा हुआ है, पार्ट लोकल जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे अभी कि जहाँ ओनानिज्म लिखा है वहां पे देखोगे लिखा हुआ है कि desire remains even after many times in one night. This drug is having developing afterwards impotency, coldness of the part, but still this desire and half part of this sexual perversion is still persisting. That means in more than 90% of case, you cannot think of any clinical deterioration without the disturbance of this sexual misuse. यहाँ पे देखो आप सबसे पहला एलेंस की नोट जिसके पास है, जस्ट ओपन योर एलेंस की नोट एंड सी द फर्स्ट पैराग्राफ. एलेंस की नोट का सबसे पहला पैराग्राफ देखो क्या कह रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब कर रहा है. वेल टू डू कॉन्स्टिट्यूशन, ए स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन destroyed by loss of vital fluid. इस vital fluid के differentiation में and losing of the good health, this is very close countered with China, Syncona. And that I would like to say you the very important difference between Syncona, that is China, and this acid phos is the acid phos is deterioration of its action is more on nerves. The deterioration of the body through its nervous exhaustion. This nervous exhaustion is more prominent in phosphoric acid as compared to China. China is deteriorating ill health in corporeal level in the basic somatization rather than this nervous exhaustion. इसी वजह से देखोगे जिसके पास बोरिक है, अभी एक बार जस्ट ओपन करो, देखते कंप्लेन लिखा हुआ है एम्प्लायोपिया इन द चिल्ड्रन हु हैव हैबिट ऑफ मास्टरबेशन. अब आप यहाँ पे एक दवाई और ऐड कर लेना, दैट इज कॉल्ड कालीकार. कालीकार is also developing a very strong pathology on eye, especially with sexual misuse. So with this intricate, first I would like to describe you for a routine study of this drug, because this drug has a very good differentiation of classification of symptoms of the psyche. यहाँ पे you will come to know that most of the time in our practical way, we take all the symptoms of mind all together. All the symptoms of mind is not equally important. Second, आप जो ऑर्गेनन में पढ़ते हो एफ्रोजन नंबर 213 के फुटनोट में regarding the importance of disposition that Hahnemann has given, how mental symptom and disposition is important. But इसको एक बार बोलिंग सेंस थेरेप्यूटिक पॉकेट बुक से जाके देखो और then you will find that symptoms of disposition and psychic causes are not same. You must be able to differentiate between these two. A psychic cause, a mental cause, an emotional cause is different. And
the symptoms, mindset, disposition of the patient is different. And until and unless you will be able to differentiate it properly, then you will not be able to evaluate your case properly. तो जब अभी अभी जस्ट पार्ट में अभी आ रहे हैं मेंटल सिम्टम में, इस पार्ट को जस्ट छोटा सा आप देख लो, ये नोट्स हम आपको अभी सेंड करेंगे इन ऑफ द वीक में. Whenever we think of phosphoric acid for clinical aspect and for all those students, they will be in your exam, you will be right to know that these parts of this remedy, as well as for those who are in practice, their clinical entry gate in the patient. Very important. For that reason, I will suggest you when I will teach you how to study Boger synoptic keynote. Why Boger has given a sphere of action as the first part of discussing their materia medica. Why Boger has given this first sphere of action, rest everything else. So, in acid phos, what are the clinical conditions commonly you will face is it is frequently required in this type: brain fag, diabetes, diarrhea, dyspepsia, emission, enteric fever, hair falling, headache of school children. This is also very important. ये commonly आप लोग use नहीं करते, इस part को याद रखना. That is called diseases of hip joint. और इस diseases of hip joint के लिए एक remedy और add कर सकते हो. That is called calcarea hypophos. लिख रहे हो? Calcarea hypophos. And one another remedy very important that I found it very important in many conditions. एक patient एक condition लेके आता है, अक्सर इसको हम कहते हैं AVN. What you say is called avascular necrosis, especially of femur or head of the neck of the femur. बहुत ही troublesome illness है, and it is very having a very bad prognosis also, because सर्जरी भी वहां पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, और अगर सर्जरी हुआ भी तो बहुत सारे डिसेबिलिटी साथ, बहुत सारे लैक ऑफ फ्रीडम के साथ पेशेंट को बाकी का लाइफ गुजारना पड़ता है. और वैसे कंडीशन में जो रेमेडी बताने जा रहे हैं, जिस बहुत अच्छा स्फीयर ऑफ एक्शन है इस एसिड फॉस के से भी ज्यादा, यू कैन से, एंड दैट इज कॉल्ड अर्जेंटम मेटेलिका. अर्जेंटम मेटेलिका. It has also a role of aurum metallicum there. And then you can think of fluoric acid. So after that, the importance is in impotency, joints complaint, scrofulous, mental weakness, and spermatoria. इसके अंदर देखोगे, all these phenomena must have an origin of loss of vital fluid or being overtaxed. ये जो हमने आपको इंट्रीगेट में बताया था, 3 वर्ड, मास्टरबेशन, एपैथी एंड ओवरटैक्स, इसमें याद रखो. अभी ओवरटैक्स बताएंगे, आपको दिखा देंगे कि ओवरटैक्स से क्या मतलब, आप समझ रहे हो. मस्ट हैव दीज 2 थिंग्स or either of these two, and that develop a different clinical conditions that I am citing here that may be called for in the treatment. इस क्लिनिकल कंडीशन को अभी बाद में जब अभी अलग से डिस्क्राइब करेंगे तो वहां इतना हमने अदर डिफरेंशिएशन ऑफ विथ डिफरेंट रेमेडी भी इसके लिए आपको हमने तैयार कर रखा है, इसमें आपको बताएंगे. सो आफ्टर दिस, इफ वी से रिगार्डिंग मैथमेटिक कंसिडरेशन, this remedy has all the 3 chronic fundamental miasm in its background. It is very fragile as features of sora. It is a very strong guilt sexual of its pathogenesis of psychosis. Even you will find that it has many complaints that develops after removal of the word by other means.
especially words on the male genital organs, as well as it has a strong destructive deterioration of syphilis. So this remedy covers all the psora, syphilis, and psychosis. When it is a matter of a sphere of action, again, this is very important. You must always keep in mind the sphere of action of this remedy is first on mind and nerves. Mind and nerves. If I have to say 90% of the clinical condition of this, I will say first nervous system, and nervous system. Then the rest of all. Sexual system is also important sphere of action, and it is also a causative factor for whole the disturbance of the economy of this drug. So beside these two, the other area of its sphere of action is metabolism, spine and sensory, all the parts of that, muscles and bone. In bone, you will see its syphilitic phenomena on affection of bone, different parts of the bone. Even देखोगे एक बहुत अच्छा clinical tips भी है इसके अंदर, that is ulceration and pain in limb after amputation. उस एम्पुटेटेड इसके लिए एलियम सेपा भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है. अनदर इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एलियम सेपा. पेन और अल्सरेशन in stump after amputation. Next to that, important area of this remedy, that causative factor of this remedy or modality of this remedy is originating from these parts. Debility from loss of vital fluid. एक चीज फिर से बता दें, loss of vital fluid, this drug is having a very equal and parallel amount of its action with China. But in China, it is loss of vital fluid of any form, blood loss, exhaustion, nursing, any form of loss of your vital fluid. Whereas in acid phos, this loss of vital fluids is at maximum, is related to its loss by the sexual misconduct. By saying sexual misconduct, either it is lost by over an excessive sexual act or by wrong sexual act, that is called indulging in masturbation and so other phenomena. So this is very important differentiation of this drug with China. पहला डिफरेंशिएशन हमने आपको बताया था, एक्शन ऑन द पेशेंट. एसिड फॉस में इट्स एक्शन इज नर्व एग्जॉशन. इसके लिए आप अगर रिचर्ड ह्यूज का फार्माकोडायनामिक्स पढ़ना, आई विल सजेस्ट यू, because this is also very important book, Richard Hughes Pharmacodynamics for Study of Mixia Medica. Although this author in this book especially have not mentioned maximum or many of the symptoms, but it has given some of the very important reliable core of the symptom that has a different relation with its pathophysiology or origin of the symptom, its originating pathophysiology. So I will suggest not for third year student, but those of the senior are here. Okay, now onwards, you must at least once study this Richard Hughes pharmacodynamics for knowing the seat and correlating its pathophysiology. And here you will get a very good differentiations also. So this, when it is said to be एलेंस की नोट में देखो relationship China और एसिड फॉस का आपको यहाँ मिलेगा very close, पूरा शुरू से लेके लास्ट तक ये चाइना इसके साथ साथ चल रहा होता है, फॉस्फोरस इसके साथ साथ चल रहा होता है, पिक्रिक एसिड इसके साथ साथ चल रहा होता है. इस ड्रग के बारे में कहा भी जाता है, it is a very good pathway. This remedy have a very good pathway between
phosphorus and calcarea phos. मोस्ट ऑफ द सिम्टम इसका देखो कैलकेरिया फॉस के साथ साथ चल रहा होता है। डिफरेंशिएशन अभी आगे हम बताएंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके कॉजेशंस के ऊपर आप देखोगे कैलकेरिया फॉस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसके डिफरेंशिएशन के साथ करने से इसका ड्रग पिक्चर ज्यादा से ज्यादा और उभर के निकल के आएगा। सो फॉर ऑल दिस फेनोमेना द modalities are the most important is loss of vital fluid, especially in the form of sexual misconduct. Then the other modifying factors are this fatigue, fever, convulsions, emotion. ये emotions का part इसके अंदर बहुत important. Next that vital loss इसके positive factor में है। Emotions में इसके देखेंगे कैसा emotion, chronic emotion. अभी बात हुई, आज की बात है, आज एक दिन में इसका डिस्ट्रक्शन नहीं होता। और इसी के लिए देखोगे इसके अंदर एक सिम्टम लिखा हुआ है कि मेंटल डेबिलिटी डेवलप फर्स्ट देन कॉर्पोरियल डेबिलिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है एसिड फॉस को प्रिस्क्राइब करने के लिए। अभी थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो हम आपको एक केस बताएंगे इसी के ऊपर। So mental debility develops first, and this mental debility once settled, it quickly goes into somatization and develops a corporeal debility, deterioration of the weight, emaciation, and different sorts of corporeal phenomena. That is psyche to soma. That is what psychosomatic expression is very strong, very quick, and very confirmative of this acid force. इसके लिए ये जो क्रोनिक इमोशन देखोगे एलियंस की नोट में वर्ड लिखा है एलिमेंट्स फ्रॉम केयर। क्या मतलब है इसका? इसको कितना गहराई से इस चीज को समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस ड्रग के लिए। एलिमेंट्स फ्रॉम केयर, जब इस पार्ट को स्टडी करना होगा तो इसके लिए साइड बाय साइड एक बहुत पैरेलल एक और दूसरा एसिड खड़ा हुआ है। एक और जिसको हम कहते हैं कि स्पेशली देखोगे जब एक और दूसरा टिप्स आप चाहो तो लिख सकते हो, एसिड फॉस को आई से सबमिसिव एसिड और इसका एक अटैकिंग एसिड है दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। फिर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज accompanying between these two, nitric acid and phosphoric acid. Phosphoric acid is having a more of taking or submissive emotions, whereas nitric acid is pound up emotions, is spelled out emotions, emotions that he cannot keep within and destroy himself. He will destroy the surrounding also. That is the difference between this phosphoric acid and nitric acid. One keep within everything and destroy their own constitution. Instead, nitric acid will expel it, the acid of inside to outside, and it will burn the surrounding. So, after this, talking homesickness, this homesickness is another part of very important rubric in this materia medica of in this remedy of materia medica. देखोगे आपकी किताब में यहाँ पे लिखा हुआ अंडर ब्रैकेट homesickness के ब्रैकेट में इग्नेशिया नॉट कैप्सिका। जस्ट सी जिसके पास बुक है वहां देखोगे इस होम सिकनेस के साथ में वहां पे इग्नेशिया लिखा हुआ है, कैप्सिकम में लिखा हुआ है। जबकि हम होम सिकनेस की बात करते हैं तो पहला 3 रेमेडी जो हमारे कान में आता है वो सिर्फ कैप्सिकम कैप्सिकम और कैप्सिकम आता है। But it is not so that only capsicum has this remedy, this symptom, and only capsicum will solve the case showing homesickness. So this अभी इसको differentiation में फिर जाएंगे हम थोड़ी देर में। This acid phos is having a very strong symptoms of homesickness as in ignatia. This symptom is also in capsicum. This symptom is also in case of chloric acid, and this symptom is also in pulsatilla. अगर नहीं आपको पता है तो आप अपने ट्रे मेडिका में लिख लेना।
पल्साटिला को हम बहुत सारे टाइम पे दूसरे रेमेडीज के हिसाब में उसको ओवरलुक कर जाते हैं, दिस सिम्पटम ऑफ होम सिकनेस इन पल्साटिला. So after this modality, what is better by warmth, better by covering, better by protecting itself, as acid phos is also among the remedy that is very sensitive to cold. And so it is having a phenomena of getting better by keeping himself or herself warm. एक जगह देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मोडालिटी में stooling, or you can say better write it stool, better by stool. This is a unique symptom and it is not mentioned in your Allen's keynote. Those who are having their book with you, just write it down. सिम्टम क्या है अच्छे से देख सुन लेना बहुत अच्छे से carefully. ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, कब मिलता है लेकिन जब मिलेगा तो प्रिस्क्राइब करोगे and you will get the result. That a patient suffering from chronic diabetic condition, a patient suffering from chronic loose stool, and the patient is always feel better while he is having a loose stool. His other complaints will be at ease. His other troublesome complaints will be at ease, will be relieved as soon as long as he is having a diary tendency. और जहां इस डायरी टेंडेंसी को किसी अदर मीन्स से, नॉट बाय एसिड फॉस बट किसी अदर मीन्स से, किसी अदर रेमेडी से अगर डिस्टर्ब कर दिया गया तो फिर इसका दूसरा कंप्लेन एग्रावेशन होना शुरू हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू हियर इन एमिग्रेशन दैट स्टूल, ये इसका बेटर बाय स्टूल, बेटर बाय डायरिक स्टूल वैसा ही यूनिक है जैसा आप कैलकेरिया कार्ब में पढ़ते हो. पेशेंट फील्स बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेटेड. एक दिन सुबह पेट खाली ना हो तो नक्सवोमिका का सारा स्टमक चेहरे पे नजर आ जाता है. एलोस कोटिना का सारा रेक्टम सर में समा जाता है इन द फॉर्म ऑफ हेडेक. आप कॉमनली देखोगे पेशेंट का दिन, पर्सन का दिन खराब जाता है, ऑफिस में टाइम बार बार मूवमेंट की तरफ ध्यान जाता है और वहां जितना दिन तक ना हो उतना अच्छा है ये जो फीलिंग मिलता है कैलकेरिया कार्ब के अंदर. द सिमिलर वे यू विल फाइंड इन एन अपोजिट कंडीशन इन कॉल्ड acid phos. The patient feels better as long as he is going on diarrheic stool. और अगर आपको पता है, आप देखोगे जब एक्यूट क्राइसिस ऑफ डायरिया आता है वहां देखोगे ये यूनिकनेस है एसिड फॉस का, जो कि अपोजिट टू द एसिड ग्रुप भी है. एसिड ग्रुप इज हाईली debilitating medicine having a strong prostration. इस रेमेडी में भी देखो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से कितना प्रोस्ट्रेशन पैथोलॉजी डेवलप हो रहा है, लेकिन स्टूल में प्रोस्ट्रेशन नहीं है. डायरिया हो रहा है तो प्रोस्ट्रेशन नहीं है. ये इसका यूनिकनेस है, ये इसका पिकुलियरिटी है. So this is an important modality that in the form of amelioration is relieved while and soon as he is having this stool. Now come to this elements from. ये elements from को एक बार शॉर्ट में देख लो. So after this sphere of action, clinical condition, modalities, now the most important part next to that is its elements from. इस एलिमेंट्स फ्रॉम देखो हमने दो पार्ट में बांट दिया है. एलिमेंट्स फ्रॉम आपके एलेंस की नोट में या अदर किताबों में देखोगे जहां भी लिखा हुआ मिलेगा उस पूरे एलिमेंट्स फ्रॉम को डिवाइड करो. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है फॉर स्टडी ऑफ मटेरियलिका. डिवाइड इट ऑल दोज causes which are psychic in origin and all the other causes. That's why I have here given you a differentiation of this causes
फर्स्ट पैराग्राफ जो लिखा हुआ है दैट इज द कॉज ऑफ साइकिक ओरिजिन। और एक चीज और है यहाँ पे, देखो अभी आगे बताएंगे भी, इसी चीज में देख लेना, साइकिक कॉज दैट इज एग्रावेटिंग फैक्टर ऑफ ए साइकिक नेचर, इमोशनल नेचर। इसको मेंटल सिम्टम्स में, सिम्टम्स ऑफ डिस्पोजिशन से डिफरेंस करना जब सीखोगे तो मेडिसिन का एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कोर एसेंस आपको और अच्छे से पता चलेगा। Never mix the symptoms of disposition with the mental and psychic causes. And that's why अभी आपको symptoms भी दिखाएंगे माइंड का जो disposition के फॉर्म में है। These are the symptoms of cause. These are the factors. These are the exciting factors. These are the aggravation factors. These are the elements from. And in the psychic level, what are the elements from? Fear, grief, chagrin, disappointed love, होम सिकनेस। ये इनका डिफरेंशिएशन भी हम आपको अभी नीचे बताएंगे। लॉन्ग सक्सेशन ऑफ मोरल इमोशन, ये लॉन्ग सक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से देखोगे एलेंस की नोट पे, जस्ट ओपन द चैप्टर इग्नेशिया, वहां पे देखोगे एक वर्ड लिखा हुआ है लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीफ। बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे लोग इसको एक्यूट रेमेडी सिर्फ कह के छोड़ देते हैं। ये इग्नेशिया के साथ बहुत इंजस्टिस है। इट इज नॉट जस्ट एन एक्यूट रेमेडी, एक्यूट कंडीशन में भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, बट इट इज नॉट दैट इट इज नॉट हैविंग ए लॉन्गेसिडिटी। इग्नेशिया के अंदर एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको अभी बताना चाहेंगे, जस्ट एक छोटा सा डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पे, बिकॉज इग्नेशिया इज वेरी क्लोज पैरेलल विद दिस एसिड फॉस गोइंग ऑन along with the China। आप लोगों ने शोले फिल्म देखा होगा, पुरानी वाली अमिताभ बच्चन वाली शोले, उसमें जो जया बहादुरी का कैरेक्टर है, वो सबको वो वाला कैरेक्टर याद है मोस्टली, जो उसने बिल्कुल सफेद साड़ी में चुपचाप साइलेंट एक उसका जो एक फिनोमेना है, दैट इज द आफ्टर इफेक्ट्स। दैट रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग इग्नेशिया। अगर इग्नेशिया को समझना है तो अब उस लड़की का, उस जया बहादुरी का वो रोल याद करो जो शादी से पहले था, जब ठाकुर उसको देखने गया था, जब वो होली खेलते हुए ठाकुर के ऊपर होली का रंग छींटते हुए जा रही थी। उसका जो नेचर था, उसका जो चुलबुलापन था, उसके अंदर जो चेबिलिटी थी, उसके अंदर जो बेबाकपन था, इज एक्चुअली द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ इग्नेशिया। उसके अंदर वो एक स्टेट होता है कि अब अगर वो उस फेज में आई तो वो कैसे जाएगी। अब जो सेकेंड काउंटर में आ गया, वो अब यहाँ पे फीचर है जो हम इग्नेशिया का ज्यादातर याद करते हैं। ये फीचर इसलिए भी आपको बता रहे हैं कि इन केस ऑफ एसिड फॉस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हेयर फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हमने इसको 3 लाइन में अलग अलग लिख के रखा है। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन आपके देखो एलेंस की नोट में ये तीनों लिखा हुआ है, स्कैटर्ड लिखा हुआ है। अभी अभी जो हमने आपको केस बताया था, अकॉर्डिंग टू दैट केस, हर सिचुएशन में ये जो एसिड फॉस का के बिल्कुल दुबला पतला इमेशिएटेड, ब्लू आंख के नीचे रिंग बन जाना, ये कॉम्प्लेक्शन का संकीर्ण हो जाना, बिल्कुल जो एक इमेशिएटेड ड्रंकन जो कॉम्प्लेक्शन मिल रहा है, ये इनिशियली नहीं मिलता, ये बाद में मिलता है। इसमें अंदर देखोगे बहुत 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग में। एंड द फर्स्ट फैक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रेमेडी, ये जो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, बेस्ट सुटेड फॉर द पर्सन ऑफ ओरिजिनली स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन हु बिकम डेबिलिटेटेड बाई क्या, यहाँ जाना, ये देख लेना, डेबिलिटेटेड बाई आइदर ऑफ दिस। कैसा था? स्ट्रॉन्ग, हेल्थी, बहुत चार्मिंग, अट्रैक्टिव, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टू द कंपनी। जहां जाए, जिस महफिल में जाए, उसको देखो, बिकॉज फॉस्फोरस पार्ट है, बहुत अट्रैक्टिव है। फॉस्फोरस और एसिड फॉस के बारे में कहा जाता है कि अगर ये किसी चीज को, किसी महफिल को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करने जाए तो बाद में बोलेगा, लोग पहले इसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। दिस इज द पर्सनालिटी ऑफ phosphorus and acid phos. For those who understand
कुछ पोएट्री उनके लिए हम कहना चाहेंगे, इसके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ कहते हैं कि जादू है या तिलिस्म है तेरी ज़ुबान में, तुम झूठ कह रहे थे मुझे एतबार था। So whatever he will say, whatever is the logic of the audience, but at that time they all will be in favor of him. They all will be say yes, yes, yes. So ऐसा एक अट्रैक्टिव, ऐसा एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी कहाँ चला जाता है? पेल, sickly complexion, sunken eyes, not well to do in look, not well to do in himself. इवन इसके ही अंडरस्टैंडिंग में एक रूब्रिक है, आप देखोगे एक वर्ड कहते हैं अबेस्ड। जब इसका सेक्सुअल पार्ट पढ़ाएंगे तो वहां पर देखोगे कि अबेस्ड लुक ये भी इसके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये भी इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ देखो सेक्सुअल सिम्टम लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है ABSHAED, ईडी, अबेस्ड। तो अबेस्ड लुक की जब बात करेंगे तो ये गिल्टी और एम्बैरेस्ड सिर्फ फीलिंग नहीं, ये उसके चेहरे पे आ जाता है। जैसे सपोज कर लो किसी को किसी महफिल में बेइज्जत करके निकाल दो, अब उसका चेहरा देखो आपको कैसा दिखने को मिलेगा। किसी को सरे महफिल कुछ बेइज्जत कर दो, कुछ ऐसा कह दो जो उसके इज्जत आबरू, उसके कोर को एक्सपोज करके रख दो। उस एक्सपोज का जो चेहरा होता है, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट बिकॉज ऑफ इट्स ओवर इंडल्जेंस इन सेक्सुअल मिसकंडक्ट, ये चीजें इतनी स्ट्रांग बैठ जाती है इसके अंदर, ये उसके चेहरे पे नजर आने लगता है। आप बहुत अच्छे से अगर आप कुछ मूवीज में या सीरियल्स में या बाकी में या लोगों में, समाज में, सोसाइटी में देखो, जब हम एक लीडर की बात करते हैं तो कैसा एक उसका आउटलुक होता है, ये ऐसा कपड़ा पहनेगा, ऐसे बात करेगा, चाहे कुछ भी हो, ऐसे हाथ जोड़े हुआ है। हम एक स्पिरिचुअल लीडर की बात करते हैं तो देखो उसके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन होता है। जब हम एक किसी क्रिमिनल, किसी डकैत, किसी एक अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं तो देखो उसके चेहरे का एक एक्सप्रेशन होता है। वो क्या होता है, अगर आप बहुत अच्छे से फिर सोमैटिक मैनिफेस्टेशंस के ऊपर अगर हम जाएंगे तो एक ऑथर है, आप उसकी किताब को पढ़ना कभी दिल करेगा तो, फ्रिट्ज ऑफ कैप्रा, उसका एक लियोनार्डो डा विंसी के ऊपर लिखी हुई एक किताब है। उस किताब में वो एक जगह कोट करता है लियोनार्डो डा विंसी की राइटिंग्स का, और वो कहता है कि इंसान का इमोशन, उसका जो थॉट प्रोसेस होता है, उसका जो डिस्पोजिशन होता है, वो वैसा ही होता है। उसके जो धीरे धीरे अंदर से एक छोटा 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 हैमरिंग कर करके उसके आउटर फेस का एक रिफ्लेक्शन तैयार करता है। फेस का मतलब है नाक का नहीं, एक्सप्रेशन का। और यही वजह है कि वो चीजें बाद में उसके चेहरे से बहुत सारा कुछ, अगर आपके पास नजर है तो आप चेहरे से भी बहुत सारे पर्सनालिटी और उसके थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर आप किसी के आंखों में देखोगे तो आंख में देखने से उसके थॉट का पता चलता है, अगर आपके पास वो नजर है देखने के लिए। और इस अबेस्ड को अगर आप एटिमोलॉजी में जाकर देखोगे तो अबेस्ड का मतलब होता है नीची नजर, नजर झुकाए हुए, मतलब नजर मिला न सके, आंख से आंख मिला न सके। ये कब होता है? जब हम किसी से नजर नहीं मिला सकते, जब हम उसके सामने शर्मिंदा होते हैं, जब हम किसी चीज से शर्मिंदा हो, वो करेज हमारा टूट जाता है तो उससे नजर नहीं मिला सकते। ये अबेस्ड का एक ओरिजिन है। तो ये उसके चेहरे पे देखोगे, जो आप देखोगे वहां कोट में भी लिखा हुआ है, ये अबेस्ड लुक इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ इट्स गिल्ट ऑफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट, को कहते हैं गिल्ट ऑफ सेक्रेट वाइस। यही अबेस्ड लुक आपको स्टेफिसेरिया में भी मिलेगा। और कहा जाता है कि ये दो ऐसा ड्रग है जहां पे आप देखोगे कि ज्यादातर जब वो इस इन्वॉल्व में इस पुलिस में होगा तब वो जल्दी लोगों से आई कांटेक्ट के साथ बात नहीं करता, आंख से आंख मिला के बात नहीं करेगा। वो जब बात करेगा तो उसकी आंख चुरा के बात करेगा।
आपसे बात कर रहा है, दिखेगा इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, नीचे। आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सो दिस इज ऑल्सो, ये जो हम कह रहे थे कि एक ऐसा अच्छा खासा गुड लुकिंग अट्रैक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बिगड़ गया, जो खुद में आईने में अपना चेहरा नहीं देख सकता, नजर मिलाने से शर्म आ रही हो, जो दूसरों के लिए अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना रह गया हो, जिसका पूरा फिजिक ही बिगड़ गया हो, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, और यू कैन से इमोशनल, यू कैन से कंज्यूमिंग इमोशन, एक ऐसा डिस्टर्ब इमोशन, एक ऐसा इमोशनल सर्कमस्टांस, इसका इम्पैक्ट जो बता रहे थे कि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं, हम जो बता रहे थे कि वहां पे कि आप में से कितने लोग हो जिसने ये महसूस किया है कि मिट्टी से पत्थर टूट जाएगा। एनीवन? नहीं महसूस किया है? अगर मिट्टी और पत्थर का इंटरेक्शन हो तो कौन टूटेगा, पत्थर या मिट्टी? मिट्टी टूटेगी, पत्थर नहीं टूटेगा। अब आप एक सिचुएशन को इमेजिन करो, आप में कभी किसी ने, गांव में कुआं होता है, कुआं, वेल, जहां पे लोग पानी निकालते हैं, पानी निकाल के वो एक मिट्टी के घड़े में रख के ज्यादातर फिर वो अपने घर ले जाते। जो कुआं का कॉर्नर होता है वो पत्थर का डाला हुआ होता है, उस पे पत्थर डाला होता है या सीमेंटेड होता है, और घड़ा किस चीज का होता है? मिट्टी का, पतला। उसको रखते भी हैं, वो लेडी ऐसे रखती है धीरे से, फिर अगर जोर से रख देंगे तो वो घड़ा टूट जाएगा, इसलिए उसको धीरे से उस पे रखा जाता है। लेकिन आप अभी भी किसी भी कुआं पे चले जाओ जो 5-6 साल से यूज हो रहा है, वहां देखोगे हर कुएं पे उस पत्थर पे उस घड़ा के रखने का निशान पड़ा हुआ है। वो निशान कहाँ से आया, किससे आया? मिट्टी से आया। वो निशान पत्थर पे, वो घिस के निशान किसने बना दिया? उस मिट्टी के घड़े ने बना दिया। ये मिट्टी का घड़ा उस पत्थर को निशान डाल देता है। मिट्टी स्ट्रांग नहीं है, मिट्टी ने फोर्स नहीं लगाया, मिट्टी ने सिर्फ कॉन्टिन्यूटी लगाई थी। वॉज द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एक्ट, जिसने मिट्टी ने भी ये कैपेसिटी प्रोड्यूस कर दिया कि पत्थर को घिस सकता है। ऐसे अगर हम इमेजिन करें तो हमको कितना ऑकवर्ड लगता है ना कि मिट्टी से पत्थर, मिट्टी से पत्थर नहीं टूटेगा, बट कॉन्टिन्यूटी के अंदर वो पावर है कि वो मिट्टी भी पत्थर में निशान डाल देता है। बचपन में हम सभी ने कहानी पढ़ी होगी कछुआ और खरगोश का, नहीं? कौन जीतता, सेंस क्या कहता है, कौन जीत रहा था? खरगोश। जीता कौन? कछुआ। क्यों? कॉन्टिन्यूटी। सो इट इज द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी that creates many impossible things. अक्सर आजकल अभी टेलीविजन पे आप लोग एक एडवर्टाइज देखते होंगे, उसमें एक, उसका एक वर्ड है, कोटेशन, कि एक रोज कुछ करना है तो उसके लिए हर रोज कुछ करना पड़ेगा। एक रोज कुछ करना है तो हर रोज कुछ करना पड़ेगा। ये क्या है? कॉन्टिन्यूटी। हर रोज कुछ करते 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 रहोगे तो एक रोज ऐसा आएगा कि आप वो कुछ करने के कैपेसिटी में आ जाओगे, उस कैपेसिटी में आ जाओगे कि मिट्टी भी पत्थर पे निशान बना देगा। 5 मिनट का फाइट होता है एक बॉक्सर का रिंग के अंदर, उस 5 मिनट के लिए कितने साल उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। और तभी एक बहुत अच्छा कोटेशन था मोहम्मद अली का, वो कहता था, इफ आई हैव टू ब्लीड लेस देन आई हैव टू स्वेट मोर। अगर रिंग में खून नहीं बहाना है तो प्रैक्टिस में पसीना बहाना पड़ेगा। दैट इज अगेन कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी। सो इस एसिड फॉस के अंदर आप देखोगे छोटी छोटी ऐसी चीजें, ये जो लॉन्ग कंटिन्यूड इमोशन की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी ऐसी चीजें जो बाकी के लिए बड़ा रोजमर्रा का चीज लगता है, लेकिन उसको धीरे 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 खा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन इट्स नर्व एग्जॉशन, नर्वस एग्जॉशन, और ये नर्व के थ्रू उसको खा जाता है।
ये वहां से उसको डिटोरिएट कर देता है। केयर की बात देखो, एक छोटा सा रूब्रिक देखो लिखा हुआ है एलेंस की नोट में एलिमेंट्स फ्रॉम केयर। अब अगर हम केयर की बात करें तो केयर करना क्या बुरा है? कौन केयर नहीं करता है? लेकिन वो केयर इसको एग्जॉस्ट कर दे रहा है, इसको बीमार कर दे रहा है। इसको बीमार करने के लिए, इसको एग्जॉस्ट करने के लिए हम ये चीज बताइए, जो केयर है ना इसी चीज को आप देखोगे एसिड नाइट्रिक के अंदर भी देखोगे, एलिमेंट्स फ्रॉम नर्सिंग केयर यहां भी मिलेगा, बहुत क्लोज है। अब वहां क्या होता है, उस एग्जॉशन के बाद, उस केयर के बाद, उस एक प्रोलॉन्ग्ड, मतलब इसके केयर में क्या है कि आप ऐसा समझ लो कि एक मारुति से एक ट्रैक्टर का काम ले रहे हो। ये इतना ज्यादा एग्जॉस्ट होने के कैपेबल नहीं है, इतना ज्यादा जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है। इसको हंसते खेलते कूदते रहना है। अब ये जो फिक्र आ जाती है, घर संभालना है, बच्चों का देखना है, ये बीमार पड़ गया, उसका देख रहे हैं। अब एक ऐसी एक्सपेक्टेशंस के अंदर गुजर रहा है जहां एवरी डे इन स्पाइट ऑफ हैविंग एनी टाइम फॉर देयर ओन सेल्फ। आज के दौर में बहुत सारा टाइम में हम कहते हैं ना, आज एक बड़ा मॉडर्न टर्म है जिसको हम यूज करते हैं आज के दौर में, मी टाइम। ये मी टाइम इसके लिए कुछ नहीं होता, बिकॉज ये हमेशा वी टाइम में लगा हुआ है, WEV। मी को उलट देना, ठीक है, M और W। देर इज नो मी टाइम, ओनली वी टाइम। और उसमें एक प्रोलॉन्ग, ये एक जिम्मेदारी, एक नर्सिंग, घर में कोई बीमार है, घर में किसी चीज को लगा हुआ है, ऑफिस का है, बाहर का है, ये जो देख रेख करते 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 करते, ये जो जिम्मेदारी उठाते उठाते एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर देखोगे कि पहले कैसा था, अब कैसा हो गया। ये पहले इतना चार्मिंग ऐसा था, अब ये ऐसे कैसे हो गया। फिर आपको हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, रिचर्ड ह्यूज का फार्माकोडायनेमिक्स कहना, करके देखोगे। बिकॉज एसिड फॉस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर डायबिटीज। इसके डायबिटीज का 99% जो कॉज है वो यही केयर एंड वरी है। ये प्रोलॉन्ग्ड नर्व एग्जॉशन है इसका। उसको रिचर्ड ह्यूज फार्माकोडायनेमिक्स में देखोगे, कहता है डायबिटीज ऑफ नर्वस ओरिजिन। और यही पार्ट आपको कोका और फ्लोरिक एसिड के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा, ये वाला पार्ट। डायबिटीज के लिए एक इसी तरह का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एसिड, एसिटिक एसिड, आपको जो पढ़ाएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां भी आप देखोगे डायबिटीज पेशेंट में बहुत शाम तक देखते हो कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, जब कहीं किसी टेस्ट के लिए गया तो पता चला कि उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। किसी को कोई तकलीफ हुई तो पता चला कि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। एसिड फॉस के अंदर आपको सबसे ज्यादा अचानक उसको लगेगा क्या कि हम स्लिमिंग या डाइट की वजह से अपना वेट कंट्रोल कर रहे हैं। पता चला 2 महीने में 5 किलो वजन कम हो गया। वो अंदर से खुश हो रहा है कि अब तो हम वेट कंट्रोल कर रहे हैं। वेट कंट्रोल नहीं कर रहा है, डायबिटीज उसको कंट्रोल कर रहा है। और अचानक सबसे पहला जो नोटिस मिलता है वो वेट लॉस का मिलता है। द सडन वेट लॉस हो गया। अब फैमिली अगर अवेयर है, फिर उसको चेक कराने गया, पता चला कि डायबिटीज 400 लेके घूम रहा है। तो पहला इंडिकेशन वहां से मिलता है जिसको लेके आता है डिटोरेशन में। एंड हेयर यू विल फाइंड, जस्ट फाइंड द डिफरेंस। अगर वो चेहरा तेल से भरा हुआ है और एक क्रोनिक एसिडिटी से सफर करता हुआ है, एंजाइटी में, वेट लॉस हो गया है, डायबिटीज मिल रहा है, थिंक ऑफ एसिटिक एसिड। अच्छा खासा इमोशन, कॉन्स्टिट्यूशन, हेल्दी लुकिंग इंडिविजुअल था। ये जो एलिमेंट्स फ्रॉम बताया है इसमें से कोई एक की हिस्ट्री है, एंड यू आर नोटिसिंग सडन वेट लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस रेमेडी एसिटिक एसिड। जस्ट इंक्वायर द causes and go into the deep. You may find it either acid, phosphoric acid और कोका। कोका के अंदर भी यही नर्व एग्जॉशन है।
वहां भी एग्जॉशन हो जाता है उसका नर्व्स का। यही जिंदगी के मराहम को जीते जीते चलते चलते आगे चलते चलते कमिंग बैक टू अगेन कि जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, यहाँ आप एलन स्किनोट के उस पार्ट को देखो एंड यू विल differentiate in that three phases, three different area you will find in physical constitution, जिसमें से सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है strong healthy constitution deteriorated by this वो कॉज मिलेगा। एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन था, डिटोरेट होके ये सेकेंड पॉइंट पे आ गया, ये ऊपर से मिडिल। दूसरा मिलेगा एक ऐसा बच्चा जो बड़ा जल्दी जल्दी रैपिड ग्रोथ में था, बहुत अच्छा था, अब वो किसी कॉज के बाद फिर चला गया। मतलब ये आप एरो या तो ये ऊपर से नीचे डाल दो या नीचे से ऊपर डाल दो। हिस्ट्री ऑफ रैपिड ग्रोइंग चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैपिड ग्रोइंग चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉस्फोरिक एसिड। जस्ट ओपन योर एलेंस की नोट, जिसके पास एलेंस की नोट है वहां देखो। एलेंस की नोट में अभी आप देखो फॉस्फोरिक एसिड के अंदर में लिखा हुआ है कैलकेरिया का कैलकेरिया फॉस। अब आप क्रियोजोट को खोलो, एलेंस की नोट क्रियोजोट, क्रियोजोट के बाद आप चले जाओ ट्यूबरकुलिन। अब आप ये जो अलग से दो दवा बताई है, इस दोनों को आप यहाँ पे लिख लो फॉस्फोरिक एसिड में, क्रियोजोट, ट्यूबरकुलिनम, और एक और दवाई ऐड करो दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरस। रैपिडली ग्रोइंग टॉलर, कंपैरेटिवली टॉलर, ये पर्सनालिटी आपको कैलकेरिया का कैलकेरिया फॉस, क्रियोजोट, ट्यूबरकुलिनम एंड फॉस्फोरस। अब एक ड्रग और आपको बताने जा रहे हैं जो आपके एलेंस की नोट में नहीं है, जिसके पास बोगर साइनोप्टिक की नोट है अभी सामने में, एक बार निकालो एंड ओपन द चैप्टर फिरम, फिरामेट। फिरामेट में देखो वहां भी आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिल्कुल क्लोज टू एसिड फॉस। क्यों दोनों चीज बता रहे हैं, एक जगह देखोगे उसके लंबाई के बारे में लिखा हुआ, और दूसरा उसी में नीचे में देखो आके लिखा होगा ड्यूरेशन ऑफ फिजिकल एंड कॉर्पोरियल हेल्थ हो रहा है, देखो उसका वर्न नोटिफिकेशंस में लंबा भी और गलता हुआ भी, ये दोनों कंपैरेटिव फैक्टर ऑफ एसिड फॉस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फेरमेट। सो फॉर द बेसिस ऑफ एनामनेसिस व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब, अब एक बार फिर से, अब यहाँ पे मेंटल, इसके बाद वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे, 7:30 हो गया है। एक चीज को याद रखना अभी के लिए, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रिस्क्राइबिंग फॉस्फोरिक एसिड, जो कि उसके कॉजेटिव फैक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इज लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। से कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि बहुत रैपिडली ग्रोइंग था, जिसका बचपन, जिसका माइलस्टोन बहुत जल्दी जल्दी उम्र से ज्यादा बढ़ रहा था। आज यही वजह है कि इसके अंदर देखोगे इस फॉस में ग्रोइंग पेन भी बहुत हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोइंग पेन, लॉस ऑफ vital fluid, especially of sexual misconduct in the persons having a very rapid growing developing childhood history। और नेक्स्ट पार्ट कर लो, ऐसा ही rapidly growing individual who is being under the cage of some consuming emotions, चाहे वो इमोशंस इन द फॉर्म ऑफ ग्रीफ हो, इन द फॉर्म ऑफ केयर हो, इन द फॉर्म ऑफ शैक्रिन हो। ये दो फीचर आज के दिन के लिए बिल्कुल याद रख ले जाना फॉर इंट्रीगेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस इट्स मेंटल सिम्टम, इट्स मेंटल पोजिशन along with difference। जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर केयर है तो साथ में दूसरा कौन सा रेमेडी है और क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। होम सिक है तो कैसे ये इग्निशिया से डिफर है, डिसअपॉइंटेड लव है तो कैसे ये नेट्राम्यूर इग्नेशिया हार्साइमस साइकोसिस से डिफर कर रहा है, उसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर
kind and cooperative listening.